यस, पीएमसी सार में आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम एक ध्यान भी उसी से संबंधित कराने वाले हैं और अपनी आजादी को सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। तो आज सभी पूर्ण रूप से जिनमें जिस भी तरह की गुलामी की जंजीरों में बंधे हैं, वो गुलामी की जंजीर हमारी सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे के गुलामी में होना नहीं है, अपने ही गलत विचारों, गलत संपर्कों, गलत भावनाओं के अंदर भी हम अपने अंदर ही कई गुलामी की जंजीरों के अंदर बंधे होते हैं। तो आज हम उन सब गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने आप को भी पक्षी की तरह पूर्ण रूप से आजाद करेंगे। तो पहला मैसेज आज का जो ध्यान यात्रा है हमारी बरखा सैनी मैम कराने वाले हैं, पर सबसे पहले मैं पत्री जी का इंडिपेंडेंस डे पर मैसेज है वो चलाने वाली हूँ, जिसमें कि हम इंग्लिश में वो मैसेज है, बट किसी को अगर कोई भी इशू हो उसको समझने में तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। PMC English wishes you a happy Independence Day. My dear friends, my dear masters and my dear gods, today it is August 15th, 15th of August, our Independence Day. On this day, we bow down to all the masters of India, great masters of India, who worked so very hard, sacrificed their lives and gave us an independent country. We salute on behalf of Pyramid Speech of Social Movement to all the masters of the independence movement. These are two great movements. One is independence movement and the other Pyramid Speech of Society movement. On this occasion of August 15th, Independence Day for India, our thoughts go on what is the concept of independence. No dependence, that is independence. It's a very, very great subject. One person cannot depend upon another person. One group cannot depend upon another group. One country cannot depend upon another country. Every person should be non-dependent, independent. Where we can live together doesn't mean that we have to depend on each other. No. Two independent entities can happily live together. That is the goal. There is no dependence, mutual dependence. In a family is togetherness, where every member is independent, with their own goals, their own ambition, their own attitudes, their own aptitudes. Everybody's attitude and aptitudes are welcome. They greatly contribute to the whole society, fabrics of society. Everybody is unique. Every entity is unique. We are here to present our uniqueness to the whole world. That doesn't mean that we have to make others dependent on us. No. Similarly, we are not dependent on anybody. We are all equally unique persons. We are coming here to express our own uniqueness. Our uniqueness is always kept intact by our independence. When we are dependent on others, we lose our uniqueness. Independence means retaining your uniqueness, contributing your uniqueness to the whole world. You are not to be slave of anybody, nor are you a master of anybody else.
Everybody is a master unto themselves. Everybody is a slave unto their own aptitudes and attitudes and goals in life. So this concept of independence must be well understood. On this particular occasion of August 15th, we are concentrating on the concept of independence. In Bhagavad Gita, there is a shloka, Uddhared Atmanatmanam, Atmanam avasadayet, Atmavi Atmano Bandhu, Atmaiva Riparatmanaha. It means you have to liberate yourself by your own efforts. You should be careful not to fall down. You are your own enemy and you are your own friend. Nobody else is your enemy. Nobody else can be your friend. You are your own master. Same thing has been echoed by Buddha in his final words, Appo Dipo Bhava, be a light unto yourself. Appo Dipo Bhava, be a light unto yourself. In pyramid spiritual social movement, nobody is dependent on nobody. There is no guru disciple here. Everybody is a master. Everybody is independent. We practice independence here in Pyramid Spiritual Society movement. And we welcome independence from everybody. In the Bhagavad Gita also the final words of Krishna are Yatha Ichasi Tatha Kuru. You do as per your wish. That is independence. Yatha Ichasi Tatha Kuru. Whatever you want to do, you do it. Don't do something because I have told you to do so. No. You do whatever you want to do. I am just telling you what I want to tell, that's all. You have to do what you want to do. Always. Always be independent. Not dependent upon anybody. Seek advice, seek knowledge, seek information from everybody, seek database from everybody. But your decision is yours. Your fate is yours. You create your own reality all the time. Nobody else creates your reality. You are always independent entity. You are free to do whatever you want. You must do whatever you want to do. You are not under the suzerainty of anybody else. No God is standing above your head. Nothing is written here that it should happen like this. No. Moment to moment, you create your own reality as per your own choice, as per your own attitude, aptitude. Spirituality is nothing but preaching independence, teaching independence, practicing independence. That is spirituality. Everybody must become spiritual. It means everybody must practice independence. Non-dependence on others. Only togetherness with others, but not dependence on others. Togetherness is wonderful. Dependence is horrible. You can't depend on somebody for something and again blame them. No. The dependence itself is wrong. It is to be blamed. Whatever one person can do, anybody else can do. If somebody has climbed Mount Everest, you can also do it. Everybody has got the same potential, same body. Everybody can achieve the same thing, activity goals. Nobody need carriers on their shoulders. No, that doesn't exist. Nobody can carry you on their shoulders. No. They try to do that, then it will be mutually harmful, both for them and for us. We have to stand on our own legs. We have to stand on our own efforts. And that's what we teach others. Hey, guy, you stand on your own efforts. Nobody is going to help you. You have to help yourself. You have to be independent. It's a great spiritual principle. So, on this day,
of August 15th, India's Independence Day, we are speaking on the concept of independence, which is nothing but pure spirituality, 24-karat spirituality. Non-dependence, no dependence, no slavery. You are a master, you are a God, you are a creator unto yourself. Equal level creator to anybody else, equal level God to anybody else, equal level master to anybody else. Children have to be taught independence right from their childhood state. They should grow in independence. It's very, very important that you give total independence to children when in their growing times. The parents should tell the children, hey, you guys, you do whatever you want to do, we are going to here to support you. Our only role is supporting your decisions. Not telling you what to do, what not to do, no. That is never our proposal. We never tell you what to do and what not to do. What to do, what not to do is a $1 million question, is your own question. But we support whatever you do. That is the parental attitude towards children. In a house, in a family, everybody is independent. Togetherness is there, but with independence. Togetherness and independence beautifully coexist in an enlightened society. There is great togetherness and there is great independence. In an enlightened society where everybody is enlightened. The goal of PSSM is to teach enlightenment to everybody. Everybody is a candidate for enlightenment. The whole society will become an enlightened society, where there is great togetherness and where there is great oneness and there is great independence for everybody else. Best wishes for everybody on this great day, August 15th, India's Independence Day. Namaskar. थैंक यू सो मच पितामह। पितामह के एक शॉर्ट में मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ, अगर किसी को भी समझ ना आया हो तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो देश की आज़ादी है ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ऐसे ही पिरामिड जो मोमेंट है ये भी उतना ही स्पेशल है और हमें अपने परिवार में छोटे छोटे अपने रिश्तों के साथ, हर चीज के साथ, किसी के साथ भी डिपेंड नहीं होना किसी भी चीज के लिए। हम सबको अपना इंडिपेंडेंट होकर अपनी यूनिकनेस के साथ आगे बढ़ना है और टुगेदरनेस के साथ आगे बढ़ना है। हमें म्यूचुअल वननेस रखनी है एक दूसरे के साथ। म्यूचुअल डिपेंडेंस होनी जरूरी है, बट डिपेंड ना होके हमें इंडिपेंडेंट ही अपना जीवन जीना है। फिर उन्होंने माता पिता के लिए भी यही मैसेज दिया है कि प्रत्येक माता पिता को भी अपने बच्चों को उतना ही फ्रीडम देना है जितनी आजादी वो उस समय पर खुद चाहते थे और हम जितनी आजादी के बारे में भी सोचते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो आजादी है वो हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। डिपेंड होकर हमें अपने जीवन को नहीं व्यतीत करना है। हम खुद एक मास्टर हैं। हमें हर तरह से अपनी पूरी बॉडी का, अपने विचारों का मास्टर ही बने रहना है। यही सब कुछ पितामह कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। यस बरखा सैनी मैम, प्लीज एक्सप्लेन। स्टार्ट कर दें मैम, हम इस सॉन्ग को बीच में प्ले कर देंगे। ये मैसेज जरूरी था इसीलिए इसको मैंने प्ले किया। ओके हाँ जी, जो स्टार्टिंग का सॉन्ग है ना वो आपका मैं बीच में प्ले कर दूंगी। ठीक है मैम, ओके। हाँ, आत्मवंदन मास्टर्स सभी को आत्मवंदन, कोटि कोटि नमन। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिखा सैनी आज शाम के सत्र में बाबा पिरामिड टीएमसी हिसार की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व हम बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, खुश हैं, झूम रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से आज का ये दिन हम मना रहे हैं। दोस्तों, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ, उन सोल्जर्स, सैनिकों, सिपाहियों, देशभक्तों को
आज हम याद करेंगे और अपने शहीदों को दिल से धन्यवाद देंगे, उनके प्रति अपना गर्व प्रकट करेंगे, क्योंकि आज उनके ही बलिदानों का यह परिणाम है कि हम कहीं भी पूरे देश में आज़ादी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। तो आज हम अपने सोल्जर्स का आभार प्रकट करेंगे। वे सभी बॉर्डर में हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कड़कड़ाती धूप हो, बरसती हुई बारिश हो, ओले पड़ रहे हो, हर जगह अटल खड़े हैं वो हमारी रक्षा के लिए। जल थल वायु सेना हर जगह उन्हीं की वजह से हम सब अपने घरों में निडर होकर सोते हैं। वो रातों को जागते हैं, ड्यूटी देते हैं, कितनी भी ठंड हो, बर्फ हो, बारिश हो या आंधी तूफान हो। आज हमें अपने भी कुछ बंधनों से आजाद होना है दोस्तों। कुछ ना कुछ बंधनों या कैद में हम भी बंधे हैं, जो कि हमने खुद ही बनाए हुए हैं अपने लिए। तो हमें उनसे अपने आप को आजादी दिलानी है। और वो बंधन क्या है दोस्तों? ये हैं हमारी पंच इंद्रियां, जिनके बंधन में हम खुद ही बंधे हैं। पांच इंद्रियां यानी हमारी आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो हमने इनके बंधन में अपने आप को खुद ही बांधा हुआ है दोस्तों। हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन हमें कंट्रोल करे। हमारी ये जो पंच इंद्रियां हैं, इनकी वजह से हम गुलाम बने हुए हैं। तो आज हमें आजाद होना है इन इंद्रियों की गुलामी से। हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए, उन चीजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ही जरूरी है ध्यान साधना। जैसा अभी आप सबने पत्री जी को सुना, उन्होंने कितना सरल बना दिया इस ध्यान साधना को, वरना कोई नहीं सोच सकता था। आज उनकी वजह से, उनके 40 साल के अथक प्रयास से ही ये घर घर में आज ध्यान फैल गया है दोस्तों, और आगे बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। पत्री जी का यही संदेश है कि हर घर ध्यान, हर घर में पिरामिड और पूरा जगत शाकाहार जगत। तो ये जो हमारे पत्री जी की गाइडेंस है, हम उसे ही फॉलो करेंगे। तो ध्यान साधना को हमें बढ़ाना है। अपनी ध्यान साधना को हम जितना बढ़ाएंगे, उतना ही अपने विचारों से, अपने इमोशन से हम मुक्त होते जाएंगे दोस्तों। जैसे कि हमारी आंखें, उसे कुछ अच्छा देखने में बड़ा आनंद आता है, और हम अगर सुबह सुबह मोबाइल उठा लेते हैं, एक बार हाथ में आ गया तो व्हाट्सएप खोला और मैसेज दिखाई देने लगते हैं, तो एक के बाद एक मैसेज आते रहते हैं और हम रिप्लाई करने लग जाते हैं, और फिर कुछ ना कुछ आता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो हम उसे चलाते ही जाते हैं। 10-15 मिनट तो अगर एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो कहीं नहीं गए दोस्तों। चाहे वो कुछ भी हो, या फिर हमने कोई न्यूज़पेपर उठाया सुबह उठते ही, तो उसमें नकारात्मक न्यूज़, कहीं रेप, चोरी, मर्डर की खबरें पढ़ने लगते हैं, और सुबह सुबह हम अपने आप को ऐसी नेगेटिव डोज दे देते हैं अनजाने में ही। तो दोस्तों, ये हमारी आंखें जो इन पंच इंद्रियों में से सबसे प्रमुख हैं, ये हमें इधर उधर भटका देती हैं। दूसरी है हमारी जीवा। तो जब हम मोबाइल चलाते हैं तो उसमें रेसिपीज भी आती हैं, जीवा खाने के स्वाद के लिए मचलने लगती है उन्हें देख के। तो हमारी इंद्रियों के बस में हमारा मन है और वह मचलने लग जाती हैं। आंखों से जो भी खाने पीने की अच्छी चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से इतनी पौष्टिक नहीं होती, लेकिन हमारी आंखों को उनको देखकर रस आ जाता है। तो ये हमारी इंद्रियां जो हैं, ये हमें अपने काबू में कर लेती हैं, और हमारी जीभ उन्हें खाने को मचलने लगती है, और फिर हम कुछ ना कुछ ऑर्डर करने लगते हैं, उन्हें खाने के लिए मंगाते हैं या घर में बनाते हैं। इस तरह हम ओवर ईटिंग भी कर जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। चाहे आंखों से कुछ ऐसा देख रहे हैं, कानों से कुछ ऐसा सुन रहे हैं,
यह जीवा खाने के टेस्ट के लिए हम कुछ भी करने लगते हैं, क्योंकि किसी के लिए हम मुंह से कुछ भी बोल भी देते हैं। हमें किसी की गॉसिपिंग करने में बड़ा आनंद आने लगता है और हम मुंह से बुरा बोलने से भी नहीं रुकते दोस्तों। कानों से किसी के लिए कुछ सुना तो हमें उसमें भी आनंद आने लगता है। दूसरे की बुराई सुन के हमें बहुत आनंद आता है दोस्तों, ये मानव स्वभाव है। तो इसके साथ साथ हमें कौन सी चीजों से मुक्त होना होगा? इच्छाएं, डिजायर्स, कंप्लेंट्स, हम तुरंत ही जजमेंटल हो जाते हैं दोस्तों, या फिर एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही, उम्मीदें, हम बहुत सारी उम्मीदें लगा बैठते हैं, और ओवर अटैचमेंट, साथ ही साथ लोभ, मोह, माया, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब से भी खुद को मुक्त करना होगा दोस्तों। तो आज का दिन कितना अच्छा है, आज हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तो आज ही के दिन हम अपने इन अरशद वर्गाओं और इन पंच इंद्रियों से, जिनके जो हमें अपने कंट्रोल में करती हैं, उनसे हमें मुक्ति पानी है। मुक्ति का मार्ग क्या है? तो देश आज़ाद हुआ, उसे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली, उसी प्रकार हमें भी अपने इन पांचों सेंसेस और इन 6 अरशद वर्गों से मुक्त होना है। हमें भी अपने आप को बहुत सारे बंधनों से मुक्त होना है। कुछ और भी हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम हैं, रूढ़िवादी सोच है, उन्हें भी हमें छोड़ना है दोस्तों। जैसे अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र जी से जब राजा जनक ने प्रश्न किया था कि मुक्ति क्या है, मुझे आत्मबोध करना है, तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहा था कि, और उन्होंने केवल एक सेंटेंस में ही इसका इतना अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि विषय विष की तरह हैं, विषयों को विष की भांति छोड़ दो। किंतु दोस्तों हर कोई इसका मतलब नहीं समझ पाता, इसमें बहुत ही गहन अर्थ है। केवल एक सेंटेंस में उन्होंने ये जवाब उन्हें दिया, तो विषयों को विष की भांति छोड़ दो। इन सब विषयों को भी हमें चेक करना होगा कि उन्होंने हमारे मन को किस प्रकार कंट्रोल कर रखा है। विषयों को एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन हमें उन्हें देखना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा, और हमें मिडल पाथ, मध्य मार्ग चुनना होगा। खुद को हमेशा चेक करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत ही लोभ में पड़े हैं, मोह में पड़े हैं, फिर वो ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। किसी के साथ अटैचमेंट, अपने बच्चों के साथ ओवर अटैचमेंट करने लगते हैं हम, और अपनी पूरी जिंदगी उन पर लगा देते हैं, अपने लिए समय निकालते ही नहीं हैं। फिर क्या होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरे लिए ये करेगा, उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, वो करेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि अपना पूरा समय और पैसा सब कुछ हम उस पर लगा देते हैं, उसे बड़ा करने में, उसे कुछ बनाने में। लेकिन बड़ा होने के बाद बहुत बार ऐसा सुनने में आता है दोस्तों कि उसी बच्चे को अपने माता पिता के ज्यादा दखल अंदाजी या ज्यादा उम्मीदें लगा बैठने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया, या दूसरी जगह रहने चला गया उन्हें छोड़कर। वो खुद तो रहने चला गया, खुद ही अलग हो जाता है, तो यही माता पिता के दुख का कारण हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें अपने बच्चों को अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए। जैसे कि अभी पत्री जी ने भी कहा है कि एक उम्र के बाद अपने बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, उन्हें फ्री विल देनी चाहिए, उन्हें अपने डिसीजन खुद लेने देना चाहिए, उन्हें भी फ्री विल मिलनी चाहिए, उन्हें अपने लिए डिसीजन लेने का हक है। वो हमारी प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं है कि हम उन पर हर वक्त अपना हक जमाते रहें या उन्हें प्रेशराइज करते रहें, नहीं तुम्हें यही करना है, ऐसे ही चलना है। तो इससे बच्चे हमारे विद्रोही हो जाते हैं और फिर वो हमारे दुख का कारण बनते हैं दोस्तों। उन पर हर वक्त अपना निर्णय थोपना नहीं चाहिए। जो हमें इन बंधनों से खुद को आजाद करना है, ओवर अटैचमेंट होने से ये सब होता है दोस्तों। तो यही हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरों की कंप्लेन ना करें,
उनकी मदद करें, जरूरत पड़े तो उनके काम आए, उनकी सहायता करें। अपनी कंप्लेंट्स को ग्रेटिट्यूड में बदलकर चेंज करके तैयार रहे बदलाव के लिए, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर भी बदलाव का समय चल रहा है और हम सबको बदलाव कर लाना है अपने अंदर। खुद को तैयार करें मास्टर्स, इन बंधनों से आजाद होने के लिए। तो अब हम ध्यान में गहरे उतरेंगे। एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें, तैयार हो जाए और मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद रखें और एक गहरी लंबी श्वास बाहर छोड़ें। श्वास बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, एकदम शांत। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। आज के सामूहिक ध्यान में हम सब अपनी ऊर्जा से हीलिंग करेंगे इन सभी अपने अरशद वर्गाओं की और इन सभी पंच इंद्रियों से जो हम गलत वो लगा बैठते हैं। तो आज हम सब मिलके उनसे आज़ादी पाएंगे दोस्तों। जिस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, उसी प्रकार हम अपने आप को हर एक बंधन से आज आजाद कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। विषय भोगों में किसी भी प्रकार की कैद से खुद को आजादी दिलाएंगे। मन ही मन आमंत्रित करें आज के इस ध्यान में दिव्य देवदूतों को। उनका आह्वान करती हूँ मैं दोस्तों, आध्यात्मिक सहायकों, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड्स को, गार्जियन एंजल्स को, हमारी आत्मा, पूर्ण आत्मा और सर्वात्मा को, पृथ्वी माँ को और परम देवता को। मैं इन सब को इनवाइट करती हूँ कि आज हमारे ध्यान में आए, हमारे आज के ध्यान में हमारे साथ बने रहे और हमें अपने प्रेम, करुणा और ऊर्जा के साथ सुरक्षा, आनंद और आशीर्वादों से भरे। हमारे अंदर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच विचार को बाहर निकालें और उसको पॉजिटिव सोच, मिरेकुलस सोच के साथ बदल दें। आज हम पूरे विश्वास के साथ आपका आदर करते हैं। हम तैयार आज के ध्यान में उतरने के लिए। हम तैयार हैं दोस्तों, अपने कर्म बंधनों से आजाद होने के लिए। हम सब तैयार हैं। अपने मन में ऐसा संकल्प करें दोस्तों कि हम सब तैयार हैं अपने कर्म बंधनों से आजाद होने के लिए। हम तैयार हैं देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। क्योंकि आज के दिन अगर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी तो हमारा आज का ध्यान बिल्कुल अधूरा है दोस्तों। आज उन्हीं की वजह से हम अपने अपने घरों में निश्चिंत रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हमारे देश के सैनिक जवानों के दिव्य आशीर्वादों से भरने के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और रिलैक्स हो जाएं और रिलैक्स होते जाएं दोस्तों। एकदम शांत। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आए और अपने मन को एकदम शांत व स्थिर करें। महसूस करें दोस्तों
इस दिव्य प्रकाश को, इस एनर्जी को जो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, इस सफेद ऊर्जा को, इस लाइट को महसूस करें। ये हीलिंग लाइट हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे पूरे शरीर में चोटी से नाखून तक प्रवेश करती जा रही है। इसकी ऊर्जा को महसूस करें दोस्तों। यह दिव्य प्रकाश, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सब पर गिर रही है और हमारी आत्मा की चमक को बढ़ा रही है और बढ़ा रही है दोस्तों। यह वाइट हीलिंग लाइट हमारी 5 सेंसेस पर भी जा रही है, उन सेंसेस में भरती जा रही है दोस्तों। अपनी आंखों में इस प्रकाश को भरते हुए महसूस करें। देखें दोस्तों, ये ऊर्जा हमारी आंखों में भरती जा रही है। जन्म जन्मांतर से इसकी आदत थी अगर कुछ बुरा देखकर उसका आनंद उठाने की, तो वो आज खत्म हो रही है दोस्तों। महसूस करें इस हायर एनर्जी में हमारी ये आदत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अपने कर्म बंधनों से खुद को मुक्त होता हुआ देखें दोस्तों। मन ही मन कहें कि मेरी आंखें शीतल होती जा रही हैं, एकदम शीतल होती जा रही। अब धीरे धीरे इस सफेद दिव्य प्रकाश को अपने मुखड़े में भरते हुए देखें। मुखमंडल में यह प्रकाश भरता जा रहा है। देखें दोस्तों, हमारे मुंह को जो कभी भी गलत वचन निकाल देता है, अपने वाक क्षेत्र में हमारा बस नहीं था, जिसकी वजह से हमने दूसरों को कभी दुख तकलीफ दी थी, उन्हें हमारे बोलने से बुरा लग जाता था, तकलीफ हो जाती थी। हमारा शरीर रूपी देवालय कभी भी इंद्रियों के बस में आकर कुछ भी अगर गंदा बोल देता था, तो आज इस डिवाइन और हीलिंग एनर्जी से वो एकदम शुद्ध और शीतल हो रहा है। फील करें दोस्तों, महसूस करें अपनी इस फीलिंग को, इस हीलिंग एनर्जी को, जिससे हमारा वाक क्षेत्र शुद्ध और शीतल हो रहा है। हमारे मुख से सही वाणी निकलती है, परमात्मा की बातें, दूसरों को सुख देने की बातें निकलती हैं। अब यह हीलिंग लाइट धीरे धीरे हमारे कानों में भर रही है। फील करें दोस्तों, देखें कान की तरफ इसे जाते हैं, ये हमारे कानों की तरफ जा रही है। जो कान हमारे औरों की बुराइयां सुनने में कभी आकर्षित होते थे, अब से दिव्य ऊर्जा से भरकर एकदम शीतल व शुद्ध हो रहे हैं। महसूस करें दोस्तों, एकदम शीतल और शुद्ध होते जा रहे हैं। अब ये आवश्यक बातें, मधुर बातें, ज्ञान की बातें सुनने के लिए आकर्षित होते हैं। हमारी आत्मा हमें क्या कह रही है, अब हम वो भी सुन पाते हैं। अब यह हीलिंग लाइट, यह वाइट एनर्जी लाइट हमारी त्वचा पर भर रही है। महसूस करें इसे अपनी त्वचा में जाते हुए। देखें दोस्तों, देखें इस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को।
ये धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर की त्वचा में भर रही है। परमात्मा के इस स्पर्श, उनकी ऊर्जा और उनके आशीर्वादों को हम महसूस कर पा रहे हैं। कोई भी गलत कर्म अब हमारे द्वारा नहीं होगा दोस्तों। कोई भी गलत कर्म अब हम नहीं करेंगे आज से दोस्तों। परमात्मा की ऊर्जा से, उनकी दिव्यता के एहसास से मेरा प्रत्येक अंग सुगंधित हो रहा है। एहसास करें दोस्तों, इसे फील करें, महसूस करें, अपने अंग अंग से सुगंध उठ रही है। ऐसा महसूस करें कि आपके प्रत्येक अंग में सुगंध ही सुगंध आ रही है। अपने मन की सुंदरता को, उसकी खुशबू को हम सूंघ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों। इस खुशबू को महसूस करें दोस्तों, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मंद मंद सुगंध। मेरी सभी इंद्रियां भी अब मेरा साथ देंगी। अब तक उसका गुलाम बनकर हम जी रहे थे, लेकिन अब मैं उसकी मालिक हूँ, या अब मैं उसका मालिक हूँ। आज मैं सचमुच स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ इन बेड़ियों से। इस स्वतंत्रता को महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मुझे हर काम परमात्मा का काम समझकर सफल और शुभ करना है। मुझे अपने लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या को, क्रोध को और ओवर अटैचमेंट, इन सब से भी मैं आजाद हो रही हूँ या आजाद हो रहा हूँ। महसूस करें दोस्तों, बने रहें अपनी कोमल निर्मल सांसों के साथ। धीरे धीरे अपने अंदर इस पॉजिटिविटी को भरते जाएं दोस्तों। अपने अंदर बैठी हुई हर एक नेगेटिव थॉट को बाहर निकालते जाएं। ऐसा विश्वास करें दोस्तों कि मैं आजाद हूँ, बिल्कुल आजाद। इन सब बंधनों से आजाद होता जा रहा हूँ या हो रही हूँ। अपने हर एक काम को परमात्मा का दिव्य, परमात्मा का ही दिया हुआ काम समझकर अब हम करेंगे दोस्तों। परमात्मा कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, जो मेरे बंधु, मेरे सखा और मेरे माता पिता हैं। मेरा सच्चा गाइड, सच्चा साथी हर पल मेरे साथ है। वो मुझ में ही विराजित है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो मेरे भीतर ही है दोस्तों। मैं हम ऐसा महसूस करें, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, सौंपती हूँ अपनी पूर्ण आत्मा को। अपने आप में स्वतंत्रता को महसूस करें, अपनी आजादी को महसूस करें दोस्तों। कुछ देर इसी एहसास के साथ आज अपनी सांसों के संग अपने ध्यान में बने रहें। पूरे
पूरी दिव्यता से भरे आज के इस पावन दिन में हम आज के दिन की इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर पूर्ण रूप से समाहित कर रहे हैं। मैम सॉन्ग लगा दीजिए, मीना मैम। दोस्तों कुछ देर हम म्यूजिक पर मेडिटेशन करेंगे। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। आज के दिन की इस दिव्य अब ऊर्जा जाके कहीं हम सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल
गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक सैनिक के दिल की आवाज इस गीत के रूप में हमने सुनी। क्यों ये धुन खास है, आज की क्यों ये 130 करोड़ दिलों के पास है, क्यों हर एक भारतवासी इसे एक साथ गुनगुनाता है। इस धुन में परंपरा, विरासत और भविष्य की उड़ान है। जाति, मजहब, प्रदेश, सबसे ऊपर यही हमारी पहचान है। यह सिर्फ एक धुन नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय 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 है सीमा पर खड़े हर जवान की, जय है खेतों में जुटे हर एक किसान की, जय है सर ऊंचा कर रहे ज्ञान की, विज्ञान की, जय है सारे जहां से अच्छे अपने हिंदुस्तान की। आहरह तब आह्वान प्रचारित, सुनि तव उदार वाणी। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी। पूरब पश्चिम आशे, तब सिंहासन पाशे। प्रेम हार होय गाथा, जनगण ऐक्य विधायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। जय 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 पतन अभ्युदय बंधुर पंथा,
युग युग धावित यात्री है चिर सारथि तव रथ चक्र मुखरित पथ दिन रात्रि दारुण विप्लव माझे तव शंख ध्वनि बाजे संकट दुख त्राता जनगण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे जागृत छिलो तव विचल मंग नत नयने अनिमेषे दो स्वाग्नि आतंके रक्षा करिले उनके स्नेहमय तुमी माता जनगण दुख त्रायक जय है भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 आ रात्रि प्रभातिल उदिल रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले गाहे विहंगम पुण्य समीरन नव जीवन रस ढाले तब करुणा ऋण रागे नेद्रित भारत जागे तव चरणे नत माथा जय 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 हे जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता जय 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 हे दोस्तों, आज की इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटें और याद करेंगे सभी देशवासियों को, सिपाहियों को, उन जवानों को और उन सबकी कुर्बानियों को हम सलाम करते हैं। सलाम करते हैं उन माँओं को जो आज़ाद कराने में जिन्होंने अपना खून बहाया, उन देश भक्तों को जिन्होंने कुर्बानी दी, कष्ट पीड़ा सहा, उन बेटों को। उस माँ को सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। अपने देश की मिट्टी को सलाम करते हैं दोस्तों। आज बॉर्डर पर जो हमारे देश के सिपाही सैनिक अपना घर परिवार रिश्ते नाते सब से दूर रहकर हर तरह की तकलीफ सहकर भी खड़े हैं, अपनी जान बिछाए बैठे हैं ताकि हमारे देश पर कोई आंच ना आए, ताकि हम आज़ादी से कहीं भी घूम फिर सकें। हम सब की दुआ
हर पल उनके साथ है दोस्तों। आज के ध्यान की ऊर्जा उन सब के लिए है दोस्तों, और बनी रहेगी हमेशा के लिए। और अब एक सलाम उन सभी शहीदों को, सैनिकों को, जिनकी वजह से हम अपने घरों में आराम से रहते हैं। धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की कोशिश करें। अब हम धन्यवाद देंगे मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को और अपनी प्रकृति माँ को। सभी पृथ्वीवासी स्वस्थ हैं, खुश हैं, आध्यात्मिकता में जुड़ते जा रहे हैं, पत्री जी के स्वप्न को साकार करते जा रहे हैं, ध्यान जगत को, शाकाहार जगत को, पिरामिड जगत को अपनाते जा रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां सब खत्म हो रही हैं। पृथ्वी पर चारों ओर खुशहाली और हरियाली छाई हुई है। सभी भारतवासी एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं। सभी पशु पक्षी जाति, खनिज जाति दिव्य प्रकाश में नहा रहे हैं। ये ऊर्जा हम सभी ध्यानियों से निकलकर हमारे देश के सभी सिपाहियों और सैनिकों तक पहुंच रही है। डिवाइन पावर, डिवाइन लव सभी प्राणियों को मिले, इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी ध्यानियों का धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान को करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आप सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आज़ादी के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू वीना मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू Thank you so सो much, मच। आपने इतना अच्छा ध्यान कराया। हमारे देश के शहीदों को पूरी के पूरा क्रेडिट देते हुए आज की जो हमारी ध्यान की ऊर्जा है वो पूरी की पूरी शहीदों और बॉर्डर पर बैठे सभी सैनिकों के लिए ही हम पूरी की पूरी जी, ऊर्जा को भेजते हैं। उसके बाद हम मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, हम कुछ भी होने से पहले, हम हिंदुस्तानी होने से पहले, हम भारतीय होने से पहले, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कुछ भी होने से पहले हम एक इंसान हैं, और वही हमें सबसे बड़ा उद्देश्य रखना है, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। जब हम एक अच्छे इंसान के रूप में रहेंगे तो हम अपनी मातृभूमि को भी उतना सम्मान देंगे, अपनी जन्मभूमि के साथ हम पूरी तरह से उसके होकर रहेंगे। जो हमें उसके लिए करना चाहिए वो कर पाएंगे, ना कि सिर्फ देश के तिरंगे को लगाकर अपने स्टेटस पर बैठेंगे। हमें उस देश को, अपने इस समाज को कुछ ना कुछ देकर भी जाना है, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इसके बाद मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सब लोग मेरा स्टेटस जरूर देखें, और उस पे मैंने जो एक स्टेटस मैंने अपनी तरफ से ही लगाया है कि हमारे झंडे का सम्मान जो कि हम कर रहे हैं, आज तो सभी कर रहे हैं, कल अगर किसी को भी कहीं पर उस झंडे को यहाँ वहां फेंका हुआ मिलता है, प्लीज उसे उठाकर खुद डिस्पोज करें और पूरी तरह से गाइडेंस दें, अपने स्टेटस पर लगाएं। जितना गाइडेंस इस चीज पर दे सकते हैं, आज के दिन बहुत से बहुत सम्मान करेंगे, कल के बाद जो होने वाला है वो हमारे देश के सम्मान पर हमारे लिए एक शर्म की बात ना हो। बस मैं ये जरूर चाहती हूँ कि उस स्टेटस को आप सभी जहां अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर सब जगह फैलाएं, और उसके बाद अपने आसपास इन चीजों का ध्यान रखें, ताकि हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं, ये भी बहुत बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। थैंक यू सो मच शिखा मैम, बहुत 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 अच्छा ध्यान था। हमें सब कुछ बनना है, उसके साथ हमें एक अच्छा इंसान, नेक इंसान बनना है। ठीक, यस, थैंक यू। यस, प्लीज आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आत्मवंदन वीना मैम। आत्मवंदन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत अच्छा करवाया है शिखा मैम ने, और इस बहाने ये सब जागृति हो जाती है कि हमें कुछ ना कुछ समाज के लिए करना ही चाहिए, योगदान देना ही चाहिए। क्या हम वैसी लाइफ तो नहीं बन सकते सैनिक की लाइफ और ये सारा कुछ जो बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन कुछ भी करेंगे तो
हम अपने लिए ही कुछ कर रहे हैं, मतलब हर इंसान सैनिक हाँ। नहीं बन सकता। हम हाँ। जहाँ हैं हाँ। और जितना कर सकते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हाँ एक जी। छोटे छोटे, वो कहते हैं ना, कंकर डाल डाल कर पूरा पानी घड़े में आया। तो हाँ वो जी। जो छोटी छोटी अभ्यास होते हैं, छोटी छोटी कोशिश होती है, उससे ही बहुत कुछ हो जाता है। हाँ जी, ये आज काफी अच्छा था, बहुत इमोशनल भी था। थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू मैम। मैम मैं थैंक एक यू। बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कांता मैम, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि हर आदमी तो सोल्जर नहीं बन सकता, वहां पर नहीं जा सकता बॉर्डर पर। तो आज हमें पत्री जी का जो हमें ध्यान हाँ जी। सिखाना है मैम, आप भी सिखा सकती हैं, आप भी मेडिटेशन करा सकती हैं। जो भी मिले उसको आप प्लीज उसको ध्यान, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत से जोड़िए। हाँ यही जी। हाँ सबसे बड़ा जी, आज का हमारा मैसेज है पत्री जी का, और यही आपको करना है। वही आप नहीं पत्री कर जी की सकते। भी सही बात लगी मुझे भी। बिल्कुल। इंडिपेंडेंस डे के मतलब है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है, ये भी यस। बहुत अच्छा था, मैं बिल्कुल। बताना भूल गई। थैंक हाँ यू, बहुत हाँ। ज्यादा अच्छा था उनका भी, पत्री जी का भी। हाँ, मैं वो और मैसेज उनकी, अभी ग्रुप में भी सेंड करूंगी, हाँ एक बार जी। फिर से सब सुने। मैम जो भी मिले आपको उसको आपको मेडिटेशन सिखाना है बस, प्लीज यही आपका थैंक सबसे यू। बड़ा हाँ जी, योगदान। कोशिश करते हैं। पिरामिड बनाए, कोशिश उनके नहीं सपने को है। साकार करना है हमें मैम, हाँ यही जी। मैम, सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारा हमारा काम कोशिश करते रहना है। हाँ जैसा जी। कि हाँ आप जी। सबको पता है कि हाँ जी। मैं मम्मी के घर हूँ, बट मैंने वहां अब रूटीन बना दिया है। मैं बैठ रही हूँ और बिठा भी रही हूँ, वहां सबको बिठा रही हूँ। मेरे घर पे मेरे इन लॉज आए, सभी इकट्ठे हुए, उनको सबको रात को 2 घंटे बहुत ध्यान अच्छी पे बात है बिठा मैम। दिया। फर्स्ट टाइम था, सबको 1-1.5 घंटा। सब लोग कहते क्या अभी पहली बार में तूने तो 1.5 घंटा बिठा दिया मजा आ हमें। गया। तो जब उठे, रियली बता रही हूँ कि भतीजा मतलब काफी ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा था, और उस मतलब उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, और वो अंदर ही अंदर इतना मतलब परेशान था। और उसके उस ध्यान के बाद 12 बजे के बाद वो लड़का कभी, मतलब वैसे तो वो 6-7 बजे के बाद कभी कुछ मुंह में ही नहीं डालता, और वो 12 बजे भी मेरे घर से खाना खा के गया। मतलब ध्यान के बाद मतलब वो इतना रिलैक्स हो गया था, इतना रिलैक्स हो गया था। और मैं डेली अपना मम्मी के घर भी हम लोग बैठते हैं, तो सबको मैं बिठा देती हूँ कि नहीं, बैठना ही है, बच्चों को भी बैठना ही है। जिस भी तरह से जितनी भी कोशिश हम, देखिए, जिसकी आत्मा लेना चाहेगी ना वो ले लेगी। हमारा प्रयास करना काम है, और करते रहो। कोई आए, मेरी मौसी का बेटा मम्मी को पूछने के लिए आया, और हमने उसको 1.5 घंटा ध्यान पे बिठा दिया। बिल्कुल ठीक है। फिर खाना वाना खिला के भेज दिया। अभी मेरा बेटा जस्ट 6-2 हुई, कह रहा है मम्मी आज आप ध्यान पे नहीं बैठ रहे। मैंने कहा नहीं, अभी शुरू होएगा तो मैं अपना इस कमरे में चली जाऊँ। तो मतलब कि बच्चे भी नोटिस करते हैं, हाँ, किस और समय आप सारे, करती और हैं। यही करते यही ही हैं, हमारे तो बिल्कुल। पहले से ही करते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, और वो हाँ, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, तो है उठ ना, जाए। जैसे उनको पता है कि मम्मी तो अभी कहेगी बैठ जाओ ध्यान में, या हनुमान चालीसा बोल लो भी, है ना। जैसे ही वो थोड़े परेशान होते हैं या कुछ, तो कुछ हाँ, टाइम से बिटिया भी आई हुई है ना थोड़ा सा घर हम्म, में, इसीलिए थोड़ा मैं 1-2 छोड़ भी दिया है मैंने, संडे का छोड़ा है मेरा। तो हम्म, उसकी वीडियो भेज देना मैडम आप। आज तो कर क्योंकि देती बहुत जैसे अच्छी कि कराई आए थी हुए ना थे, मैम ने देवी सर्कल की। अब थोड़ा आपने टाइम गौतम भी चेंज मितान कर ने भी दिया, बहुत अच्छी 1:30 कराई। कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने 2:30 मैसेज तो बजे, मैम डाल दिया था, बट वही हाँ है ना वो कि फिर, हाँ, मुझे क्योंकि वहां जाना था, इसी वजह से मुझे ये वो 11 से 1-1:30 तक फोन बहुत कम देखते हैं, क्योंकि वो काम होता है ना बिजी का। हम्म, सुबह देखा, फिर वही दोपहर को 2:30-3 बजे फोन उठते दो हैं। घंटे का गैप था बीच में, 2 घंटे का टाइम था, नहीं तो बस डेढ़ फिर, डेढ़ घंटा तो अ, था ही। तो मुझे कोई ये लगा कि जितना जल्दी कोई मैं फ्री आया हो होता है जाऊंगी ना तो तो जा कई बार पाऊंगी। फोन उठता भी नहीं है, वैसे घर में हाँ, कोई नहीं हो तो फोन उठा भी लेते हैं। मेरा हाँ, मिस हो गया संडे का, मैं कर लूंगी। हाँ, कर लेना मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सुलक्षणा मैम, आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सुलक्षणा मैम आए। मैम बहुत सुंदर हुआ है आज का। हाँ, हाँ जी। और जो सच सच बात यही है कि हमें देश के जो जवान हैं उनके लिए ही सब कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ, मतलब सब कुछ, मतलब अपने हिसाब से अपन जो कर सकते हैं हाँ, वो, जो कर क्योंकि सकते। उनकी, हाँ, उनकी वजह से ही तो हम इतने सेफ बैठे हैं, और वो क्या क्या झेलते हैं हमें सब पता रहता है। हम्म, न्यूज में वगैरह हम लोग पढ़ते ही है ना, देखते ही है सब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ध्यान, क्योंकि वो सचमुच बहुत अच्छा। और एक बात शेयर करना था मुझे
कि मैं जब बैठी तब उसके पहले से थोड़ा सा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था मैम। वो गैसेस की वजह से हो रहा होगा। और बैठी बैठी फिर मेरा ध्यान थोड़ा सा उसी तरफ था। और जब मैडम ने बोला, शिखा मैडम ने, कि जैसे ऊर्जा आ रही है, फिर वो अपने आँखों से या कानों से वैसे ऐसे-ऐसे आ रही है। तो ऐसे में सोचते-सोचते फिर मैंने पेट के ऊपर भी ऐसे मतलब इमेजिन किया कि आ रही है ऊर्जा। और वो पूरा होने के बाद अभी मेरा पेट दर्द ही गायब हो गया मैम। बस मुझे मतलब बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच शिखा मैडम और वीना मैडम। थैंक यू। ये रेडमी नोट 9 प्रो कौन है प्लीज? मैम मेरी सिस्टर हैं बड़ी। नहीं, एक और कौन सा था, मुझे ना उनका नंबर ध्यान नहीं है। इनको क्या करो कि ना, कुछ कंप्लेन आई है उस नंबर के लिए, तो अपने नाम से ज्वाइन क्या वो करें मैम ताकि। दूसरा है, वो C2, वो कुछ C2 ऐसे था, रेडमी C2 कुछ। हाँ, मुझे नहीं पता, हाँ मैंने उस दिन ध्यान नहीं नहीं, दिया। इनको तो मैंने मैसेज किया था, हाँ, ये इसलिए आई है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये अपने मेरी नाम से सिस्टर है, ज्वाइन जोड़ा करें। है, अपने जोड़ा नाम है। से ज्वाइन करें, हाँ। नाम हाँ से ज्वाइन करेंगे ना तो हम उनको अच्छे से कैच कर पाएंगे कि वो कौन ठीक है मैम, पर्सन वो है अभी जो। आता नहीं, उन्हें करा लेंगी बच्चों से, मैं हाँ, बोलूंगी। हाँ, ठीक है। हाँ, वो चीज बता दीजिए इनको, क्योंकि मैं उनको उनसे बात करना चाहती हूँ। मेरे पास नंबर नहीं है, उन्होंने क्या मैसेज किया आई डोंट नो। मेरे पास कॉल से ही वो रिप्लाई मैसेज का वो आया है कि ऐसा कुछ मैसेज आया था, बट मैं बिजी होती हूँ, मेरी आईज भी क्लोज होती हैं, तो हाँ मेरा जी। ध्यान भी नहीं गया। कुछ आईज वीक हैं, तो जब स्पेक्स मैंने निकाला हुआ होता है तो मुझे डिस्टेंस से पता भी नहीं चलता कि कौन से मैसेज है, मुझे मतलब ध्यान से देखना पड़ता है उस चीज को। तो इसी वजह से मुझे पता नहीं चला वो कौन है। तो मैं चाहती हूँ कि अब हमारे पास जो भी आए वो अपने नाम से ज्वाइन करें, ताकि हमें वो पता चले कि वो पर्सन कौन है। यस मैम। ठीक है ना? हाँ, मैंने कल भी था तो वो उसी टाइम क्विट कर गए थे, कल भी था। हाँ, हाँ मैंने उनको बोला कि आप अपने नाम से ज्वाइन करें, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, तो वो फिर उन्होंने क्विट ही कर दिया था। हाँ, ब्लॉक ही करना पड़ेगा उन्हें। हाँ, फिर तो इसी वजह से यहाँ टाइम पास का कोई सीन नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, यस। प्लीज रामेयर सर, संगीता मैम, सुमित सर आए, प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। सभी मास्टर को मेरा कोटि कोटि नमन। सीता मैडम ने बहुत ही सुंदर ध्यान भी करवा, और मैडम ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर बहुत सुंदर संदेश दिया। हमें समाज में रहकर ही देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, हमारी सोच को अच्छा रखना चाहिए। और जैसे मैडम ने बताया, इंद्रियों के बारे में बताया, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर मैडम ने संदेश जो दिया है। क्योंकि हम कई बार फेसबुक पे देखते हैं और देखते हैं, तो कई बार ऐसी नेगेटिव खबरें आती हैं। जैसे मैं ही बहुत ही अच्छी ऊर्जा में था, ध्यान करके उठा था, तो मैंने देखा था कि तो राजस्थान में ऐसी कोई घटना थी बच्चे के साथ, जो कि बड़ी शर्मनाक घटना थी। इसके ऊपर स्वतंत्रता दिवस पे शायद आपको पता भी होगा, कोई बच्चा था वो पानी पी रहा था, तो मास्टर ने हमने नहीं उसको, सुना। जी देखो जी मैं जी, पिटाई की वीडियो थी मैडम, बड़ी दर्दनाक थी। वो बच्चा शायद मर चुका है, उसके ऊपर काफी विवाद भी चल रहा है। तो ऐसी घटनाओं से कई बार मन है ना बड़ा परेशान हो जाता है, तो ऊर्जा डाउन नहीं होती इससे। सर, फिर वही बात आ जाती है, ये कार्मिक तो रहता ही है, कहीं ना कहीं कुछ जी भी जी हमारे साथ हो रहा है तो वो कार्मिक तो रहता ही है। बाकी जो जैसी सोल है, हर एक अनुभव उसको करने हैं, हर तरह के अनुभव करने के लिए ही हमारी सोल्स यहाँ पर आती हैं। तो हम किसी को भी अच्छा या बुरा यहाँ कह ही नहीं सकते, कि वही बात है कि पूर्ण से निकली हुई हर चीज पूर्ण है, कुछ भी गलत नहीं है। और जो उस चीज को मतलब कर रहा है या जिसके साथ जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पास्ट से जरूर कारण रहा होगा। तो हम उस चीज को वहां पर गलत कह नहीं सकते। बाकी जो हो रहा है उस चीज की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर फिर नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं
ले आती हैं, बिल्कुल ले आती हैं। समाज तो फिर हाँ, हमको कोशिश करें कि रियली बता रही हूँ मैं आपको, मैं कोई भी न्यूज मेरे सामने अगर कोई चला के भी बैठा है ना, मैं वहां हूँ तो ब्रदर वगैरह की हैबिट है कि चला के बैठ जाते हैं, जस्ट उसी टाइम उनका मोबाइल छीन के बंद करवा देती हूँ कि तुमने कुछ चलाना है चला लो, बट यहाँ न्यूज से रिलेटेड कुछ नेगेटिव न्यूज मत चलाना, रोने वाली पीटने वाली कुछ भी मेरे सामने चलाओ ही मत, मैं जानना ही नहीं चाहती कि क्या हुआ है। जी 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 तो अपने आप को ऐसा बना लो, जानने की कोशिश ही, इच्छा ही मत रखो कि कुछ हुआ भी है, तो अपने आप ही वो चीजें फिर मेंटेन हो जाएंगी। हम वहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जी। और मैं है ना। हाँ सभी सभी मास्टर को ये चाहिए कि हमारे जो ग्रुप में है ना, तो कोई भी अगर कोई मटेरियल डालता तो ध्यान संबंधी ही हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान से संबंधित चीजों पर ही जैसे अपना ज्ञान, ध्यान दे। हाँ जी जी, ज्ञान में बड़े ध्यान में बड़े। कई बार कई हम फालतू की पोस्ट भी डाल देते हैं, तो वो है ना किसी को अच्छी लगती है, थोड़ा किसी को जोर नहीं से लगती। बोलिए। ग्रुप में जी डाली है क्या किसी ने, अपने ग्रुप में है नहीं क्या? कुछ, हाँ कुछ ऐसी पोस्ट एक आध आ जाती मैडम, कोई कोई डाल देता था ऐसी पोस्ट। हाँ तो वो एक्चुअली ज्ञान से वहाँ, संबंधित ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल अपने ग्रुप में ही जी है जी। क्या ये पोस्ट जो आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे ग्रुप में नहीं है ये। मैं तो ओके। वैसे सभी हाँ मास्टर्स हाँ को संदेश देना चाहता हूँ, हाँ कोई जी, ऐसी क्योंकि मैं हमारे ग्रुप में ना डाले। हर जी जी हर पोस्ट नहीं देख पाती हूँ, टाइम नहीं जी होता जी है, तो इसी वजह से हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा हो तो मैं उस चीज पे फिर वर्क करूंगी ना, क्योंकि एज ए एडमिन मेरी भी ड्यूटी बनती है उन चीजों पे ध्यान जी। देना। नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं है, लेकिन कई एक आधी कोई पोस्ट अगर ऐसा हो तो अगर ना डाले, मेरा कहने का तो हाँ मतलब यही है बिल्कुल कि बिल्कुल मतलब सर। ज्ञान के अलावा, ज्ञान के अलावा कोई अदरवाइज पोस्ट ना डाले, वो बिल्कुल ठीक सर। रहेगा। वो एडमिन की ड्यूटी बनती है। जी हाँ जी जी। सर। और आप जो बता रहे हो ना, वो कोई कोई फालतू का मैसेज था, वो शायद मैंने भी पढ़ा था, उसमें कुछ ऐसा कोई आलतू फालतू का मैसेज भी दे रखा था वो यहाँ पर जूम में जी जी हमारे लास्ट लक्ष्मी सर्कल वाली मीटिंग वाले दिन की बात है वो। जी 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 हाँ तो जी। मैंने हाँ नहीं सुबह पढ़ा, बताया हाँ था मेरे मैंने को। नहीं पढ़ा, मेरा जी ध्यान नहीं गया उस दिन। तो वो भी यही बोल रही थी मैम कि मैसेज पर सबका ध्यान गया है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा बिल्कुल। ध्यान नहीं गया, सो जो भी है नेक्स्ट टाइम उस मोबाइल पर ही हम ध्यान दे सकते हैं, कि जो नॉन है जिनको हम अच्छे से जानते हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर दूंगी जिनको हम नहीं जानते। जी जी क्योंकि हमारा हम बाबा पिरामिड में भी शेयर हो रहा है ना, बाबा पिरामिड में ज्यादा नहीं तो 200-100 पर्सन है वहां पर, फिर क्या सीन है कि सब एरिया के पर्सन हैं, अब क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। मैंने भी उनको उनको तो तब भी मैंने ये कहा था, हो सकता है उन पर्सन को कुछ वर्ड्स ना पता हो सकता है नहीं लिखना आता हो ढंग से कोई चीज को, वो चीजें नहीं कन्वर्ट नहीं, हो ऐसा जाती नहीं है। था। कोई नॉन पर्सन हो रहा होगा ना मैडम, ऐसा कोई ज्ञानी आदमी तो, ज्ञानी आदमी तो होगा ही नहीं जो हमारे से हाँ रिलेटेड हो, ऐसा हाँ ऐसा जी। पर्सन नहीं हो सकता वो। कोई कोई नहीं सर, देखेंगे अगर कभी दोबारा वो ज्वाइन करते हैं तो वर्क करेंगे सर उस पे भी, है ना। बाकी हाँ जी थैंक यू सर। सो मच थैंक ऑल, लव यू सभी मास्टर्स को। थैंक यू, लव यू टू। बढ़िया ज्ञान लग रहा जी, करवाते रहिए, हाँ जी। ज्ञान बढ़ाते रहिए, ज्ञान मैम बढ़ाते रहिए। मैम ने जब बोला ना सॉन्ग लगाओ, मैं तो होश में ही नहीं थी हाँ जी। जी 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 एक्चुअली, जी। मुझे लगा अरे अब मुझे आईज ओपन करनी पड़ेंगे। और कल भी आई ऊर्जा थी, कल तो बल्कि शस्त्रार से ऊपर जा ही रही थी, लेकिन ये क्या था, नोज के अंदर भी कुछ ऐसा था कि जैसे ना बड़ा वो पिंच हो रही थी, बहुत हाई ऊर्जा थी कल भी। मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाया, मेरे को किसी कारण बस कोई काम जाना पड़ गया था बीच में। जी हाँ जी सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस सुमित जी, संगीता जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। रेडमी नोट 9 प्रो, आप भी अपना, क्या नाम है इनका? सुनीता। सुनीता जी। एक्चुअली पता है वो नंबर भी ना कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, तो क्या हुआ कि मैंने यही सोचा कि आपकी सिस्टर है वो, जब नहीं नहीं, उन्होंने वो मुझे, हाँ तो नीतू भी आता है। हाँ हाँ तो मैंने उनको यही बोला कि वो शिखा मैम की सिस्टर का नंबर है, वो कहते कि नहीं शिखा नहीं मैम की नहीं। सिस्टर का जो नंबर है वो दूसरा नंबर है, हाँ तो जी, आप एक बार देखना। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात ये तो नहीं। कभी करती नहीं मैसेज वगैरह, हाँ ये तो करती नहीं। तो मुझे तो नहीं पता था ना कि ये हाँ कौन सा जी। नंबर है, क्या मैसेज था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि किसने हाँ जी, मैसेज वो किया, गलत किस नंबर फहमी से। से हाँ आप हाँ सोच हाँ रहे हाँ। होंगे। हाँ जैसे नहीं उन्होंने जैसे नंबर बोला ना रेडमी, रेडमी से मुझे हाँ इनका वाला ही ध्यान था। हाँ, तभी लिए। यस तरफ लिया संगीता, है। सुमित प्लीज। नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार, 15 अगस्त की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं।
मैम आज का ध्यान बहुत गहरा था, बिल्कुल ही शिखा मैम, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरे को विजन में दिखाई दे रहा था, पूरा एक स्टार दिखाई दे रहा था, जैसे कि मरकबा की तरह वो बना हुआ है और लिखा हुआ था उसमें श्री यंत्र। अच्छा। जैसे उससे ऊर्जा आ रही है व्हाइट लाइट की, और चांदी जैसी ऊर्जा है, और वो सीधी जैसे कि थर्ड आई पे आई है, क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए, तो फिर वहां ओम का सिंबल जैसे बन गया हो। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे आईज पे आई, तो आईज जैसे पूरी ही हम मंदिरों में देखते हैं ना, देवी देवताओं की आईज होती हैं चांदी की, इस तरह की मेरे को आईज दिखाई दे रही थी कि पूरी आईज ही जैसे मेरी चांदी के उसमें आ गई हूँ बिल्कुल ही। और जैसे कान के लिए आप बोल रहे थे, मैम बोल रही थी कि कानों में हमें बुरा नहीं सुनना चाहिए, तो मैम मेरे को ना ब्लैक ब्लैक सी जैसे धुआं सा निकल रहा है कानों से, जो भी कभी कुछ सुना है वो सारा रिलीज हो रहा था। और उसके ऊपर चांदी का ना जो मतलब एक शील्ड लगा दी गई कि अब कुछ भी बुरा नहीं सुन पाएंगे, इस तरह। फिर जैसे सारी ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही थी, बिल्कुल ही पूरी बॉडी जैसे चांदी की तब्दील हो गई हो, ऐसा दिख रहा है। फिर एक गोल्डन एनर्जी और उसके साथ उतरी कि आधा पार्ट जैसे गोल्ड हो गया हो, आधा चांदी का हो गया, और पूरा सराउंडिंग में एक पर्पल एनर्जी पूरा घूम रही थी, ये मतलब दिखाई दे रहा था। और जैसे ही मैम आपने सॉन्ग लगाया, सॉन्ग लगाते हुए मेरे को एक सीन दिखाई दिया, वो मतलब कि किसी पर्सनल के लिए नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई एक स्पेशल धर्म के लिए। मैम जैसे हम आपस में बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं तो हिंदू हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि भाई मंदिर जाते हैं तो हम हिंदू ही हैं। मेरा मानना है कि हम सनातनी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को जो हिंदुस्तान नाम दिया गया वो बाहर से आने वाले विदेशियों ने दिया था, क्योंकि हमारा देश सिंधु नदी के किनारे था, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, और सिंध नदी के साथ जो रहता है, जैसे कि हिंदुस्तान बोल दिया उन्होंने हिंद नदी के उस पे। लेकिन मेरे को जो सीन दिखाई दे रहा था वो था सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका विजन दिखाई दे रहा था। और ये मेरे को कई बार दिखता है मैम, कि उन्होंने जैसे अपने बच्चों को शहीद किया, वो एक सिख धर्म की स्थापना के लिए नहीं किया था, वो उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए किया था, कि हमारी इस धरती पर वो चीजें बचनी चाहिए कि भाई मानवता के जो गुण हैं, मानवता के गुण, यहाँ धर्म से संबंधित कुछ नहीं है मैम, धर्म से, हाँ जी, सत्य की राह पर चलना, हाँ जी मैम, बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं। मानवता के अंदर जो गुण होने चाहिए वो धर्म है, मानव एक धर्म है, सत्य एक धर्म है। पर ये जो बना दिए गए हैं अब, मतलब हम उस स्टेज पर जाकर उन चीजों के बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते, वहां पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंसानियत को जगा सकते हैं, ताकि जब इंसानियत जागेगी ना तो वो चीजें अपने आप नीचे हो जाएंगी। जो चीज ऊपर होगी वो अपना काम, उन चीजों को अपने आप नीचे कर देगी। बिल्कुल मैम। और जैसे ये केसरी रंग जैसे बोला जा रहा था ना, मेरे को तो मैम पूरे हार्ट चक्र पे केसरी रंग दिखाई दे रहा था, पूरा का पूरा, कोई ग्रीन लाइट नहीं, कुछ नहीं, पूरा जैसे केसरी रंग ही हार्ट चक्र पे आ गया हो। और पूरा जो वो ओम का सिंबल आपके उसमें होता है, गुरु नानक की जो पगड़ी के ऊपर होता है, वो ओम का सिंबल ही दिखाई दे रहा था, कि एक ही है सब कुछ, कोई धर्म वर्म मायने नहीं रखता, एक मानवता है, कि भाई सभी इंसान हैं या सभी आत्माएं हैं, जो भी सीखने सिखाने आए हैं सभी एक ही उसमें है, और सभी को एक जगह जाना है, किसी को ये नहीं है कि वहाँ दूसरी जगह जाना, सभी जहाँ से आए वहीं जाना है, और वो एक ही है सभी के लिए। तो मैम यही विजन पूरा दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छे। और एक मतलब डेथ बॉडी दिखाई दी है मैम, लेकिन वो तिरंगे में लिपटी हुई थी, पता नहीं अब वो क्या था मैम, वो मेरे को नहीं पता। वही शहीदों की बात हो रही थी, तो वहां पर वही, क्योंकि शहीदों को मतलब तिरंगे में ही लपेट कर लाया जाता है। और अभी अभी एक हरियाणा के छोटी सी, हाँ, हरियाणा के एक बहुत छोटी एज में ही, हाँ, तो वो
शहीद हुए हैं वो, तो उनको ऐसे ही लाया जाता है ना, वही रियली वो माएँ कितनी ग्रेट रही होंगी जिन्होंने मतलब उनको सैल्यूट अपने है। बच्चों को दे दिया, सच में बहुत और बहुत। उन्होंने तो ये भी कहा है कि भगवान हमें और देता कि हम और दे सके शहादत के लिए, अपने और बेटे दे सकते हैं, तो कितना बड़ा दिल है उनका, आज सोच के देखो। सही बात, सबसे बड़ा तो उनका बलिदान है। बिल्कुल। मैम जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान, तो मैम हमारे देश का नाम तो भारतवर्ष, और पहले तो वो था इंद्रप्रस्थ, फिर ये बना भरतखंडे, जम्बूद्वीपे, तो ये हिंदुस्तान नाम तो आप सही कह रही हैं, ये है ही बाहर वालों ने ही दिया है। हमारे देश का नाम तो भारत ही है। तो पहले इंद्रप्रस्थ था, जब ये पांडवों की राजधानी था तो इंद्रप्रस्थ कहलाता था दिल्ली पूरा। इन चीजों पर काफी वही है कि एग्जैक्ट कोई भी ना तो बता सकता है ना जानता है। जो चीजें जितनी हमारे सामने आई हैं उतनी ही हमें पता है, या फिर वही है कि ध्यान के माध्यम से ही ये और जो चीजें। ये आप हिंदू धर्म सच कह रही हैं, ये सनातन धर्म ही सबसे पुराना, प्राचीन, और क्योंकि मैम किसी भी है। हम जब पीछे के योगियों और संतों को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कभी ये नहीं कहते हम हिंदू हैं। हाँ, बिल्कुल। वो जो वेदों में लिखा हुआ है सनातनी वहां भी कभी ये नहीं आया कि हम हिंदू हैं या भाई हिंदू ही इसको पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ एक धर्म को मानते हैं कि भाई वो परमात्मा से जुड़े हुए, हम आत्मा के अंश हैं, उसी से आते हैं, उसी में चले जाते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। मैम ये तो आजकल बना दिया है हिंदू भगवान, हिंदुओं का मतलब ये सब पहले था ही नहीं। वही चीजें पता क्या है, हम इन चीजों को हम नहीं, इन चीजों को हम उसमें भी पढ़ चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में, कि क्या होता है कि जो हमारी सोल्स की स्टेजेस होती हैं, सोल्स की स्टेजेस के अकॉर्डिंग वो सब अवस्थाएं रहती हैं, कि जो जिस फैमिली में जन्म लेता है तो उस फैमिली के अकॉर्डिंग उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर हमने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है तो ऑब्वियस है हमारे घर में पूजा पाठ होता होगा, मंदिर में जाते होंगे, तो हमने उन चीजों को, हमें लगा कि हमारा धर्म सबसे बड़ा। तो वही चीजें चलती आ रही हैं कि जिसने जहाँ जिस फैमिली में जन्म लिया उसी को कहा कि मेरा धर्म सबसे बड़ा। वो चीजें सिर्फ स्टेजेस ऑफ सोल के हिसाब से हैं। एंड में जो स्टेज है ना वो सबकी यही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मानवता। जब लास्ट जन्म जब भी होना है वो सबका इसी अवस्था में पहुंचकर ही जाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, Redmi Note 9 Pro सुनीता जी अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। आपके कारण हमने इतनी अच्छी ड्रेस भी डाल ली आज। मैम हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने असल में अभी अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी। पूरा प्रोग्राम देखा नहीं है, इसका शिखा का मैसेज आया था, अभी ज्वाइन किया है। कई दिन से नहीं की थी क्लास। हाँ जी, आपने नहीं किया कई दिन से, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर लूंगी, रिकॉर्ड वो होने के बाद तो मैं कल की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, आज की भी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन रेखा जी आप रह गए। इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड बेटा मैम, शिखा मैम। बिल्कुल आज आजादी के रंग में रंग गए हम लोग। और इतनी ज्यादा ऊर्जा थी ना, मैं शुरू में जब आपने पत्री जी का लगाया तो मैं पत्री जी से कनेक्ट हो गई थी बिल्कुल। और मेरा थर्ड आई और बैक वाला हिस्सा पूरा इतना ज्यादा रोटेट हो रहा था और मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। और ऊर्जा फिर मैंने सैनिकों के साथ भी मैं कनेक्ट हो पाई जो हमारे बॉर्डर पे थे, क्योंकि मैंने अपनी एक पास्ट लाइफ देखी थी कि जिसमें मैं सैनिक थी और मुझे तलवार लगी थी, जो मेरे नेक पेन है वो ही चला रहा है और वो कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा था। मैं उस ऊर्जा से कनेक्ट थी। जब नेशनल एंथम हुई ना, मेरे कोई प्रोसेस चल रहा था, यहाँ इतना फ्लो था। जैसे ही मैं नेशनल एंथम के लिए खड़ी हुई तो मुझे चक्कर आए बहुत तेज। बहुत मुश्किल से मैं संभली हूँ क्योंकि मेरा चल रहा था प्रोसेस। आंखों में से आंसू आ रहे थे, बैलेंस नहीं हो रही थी ऊर्जा। और फिर बाद में मैंने आपसे भी मैंने ऊर्जा महसूस किया कि आप भी पूरा जैसे वो छोटे छोटे हमारे नेशनल फ्लैग लेके डांस कर रहे छोटे छोटे बच्चों के साथ। मुझे फ्लैग ही फ्लैग दिख रहे थे और कुछ भी वो बिल्कुल ये वाली फ्लैग छोटी छोटी ना किसी बच्चों के साथ, और यही थी।
हम लोग जैसे डांस कर रहे हैं, अपना आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो ये इतना सुंदर ध्यान था, बहुत ज्यादा, और ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी खत्म हो गया। आँख नहीं खुल रही थी, बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी। देखा मैडम, पास्ट लाइफ को वो कर गया, आप तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया आपका तो। हाँ, इनका तो वो हो गया। बहुत बढ़िया। जी, और मैम जो आप कह रहे हो वो लक्ष्मी सर्कल का जो हमने किया है ना, उसमें रियलमी 3 के नाम से कोई थी, तो उन्होंने आपसे बात भी की है, शायद उनको ना वर्ड लिखना नहीं आया है, उन्होंने चैट में लिखा था। हाँ, मैं भी यही बात बोल रही थी कि उनको लिखना नहीं आता होगा, लिखना और नहीं आ रहा था, और उन्होंने इसलिए लिखा, और उन्होंने आपसे बात भी की है, क्योंकि उन्होंने बाद में बोला भी है, पहले उनका नाम था जैसे रियलमी 3 के नाम से उनका था, और बाद में उन्होंने कहा कि मैं ये बोल रही हूँ, उन्होंने अपना नाम भी बोला, लेडी थी वो। रात को मेरी उस दिन कॉल्स भी बहुत आई हैं, 4-5 कॉल्स आई हैं मेरे पास उस डे पे। मैंने रात को एक उसी नंबर पे, अब मुझे नहीं पता कि ये वही है या कोई, जिस नंबर से मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आई थी, उनसे मैंने रात को 11 बजे बात की, और 45 मिनट उन्होंने मुझसे बात की, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, डिस्कशन की, बट उन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया, उनके इश्यूज कुछ और बताए थे उन्होंने। तो वही है कि वो कुछ और लिखना चाहती होंगी। वो वैसे उन्होंने गलत मैसेज नहीं किया था, बस उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बस वो वर्ड उनको लिखना नहीं आया, वो वर्ड गलत लिखा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मोबाइल पर टाइप करते हैं ना, तो वो वर्ड्स ऑटोमेटिक भी चेंज होते हैं। हाँ, वही हुआ था, उन्होंने वैसे कोई गलत मैसेज नहीं किया था। हाँ, मुझे जब उन्होंने वर्ड्स बताए थे ना, तो मुझे यही लगा था कि हो सकता है कोई गलत पर्सन भी नहीं था, गलत मैसेज भी नहीं था, सिर्फ उनका टाइपिंग में हुआ है या कुछ हुआ है, उन्होंने कहा, बाद में अपना नाम भी बताया था, और वो रिकॉर्डिंग में होगा भी। वो ये बोल रही थी कि 80 ईयर की लेडी है जिनकी मेरे से बात हुई है, उनको जूम वगैरह चलाना नहीं आ रहा है, तो उनके बच्चे उन्हें सिखा नहीं रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे उस दिन इस बारे में बात की। वो मुझे भी यही लग रहा है, वो लगता है, हो सकता है उन्होंने अपने बच्चों से टाइप कराया हो, और बच्चों ने नहीं किया टाइप, उन्होंने ही किया है, बट उनको लिखना नहीं आता, यूज उन्होंने ना तो कोई गलत क्वेश्चन पूछा, ना उनका इंटेंशन गलत था, ना कोई गलत पर्सन थी वो।